हेलो गाइस, जैसा कि हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 चैप्टरों का पढ़ा पूरा कर लिया है और अब हम 5th चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। तो आप जल्दी से शेयर, लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो पुराने चैप्टर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक होंगे, तो वहां से आप पिछले चैप्टर्स को देख सकते हैं। अभी हम आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चैप्टर के ऊपर चलते हैं। तो आज का चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये 10th क्लास में 5th चैप्टर है, ठीक है। तो देखिए इसको, 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर में क्या है, पहला टॉपिक आया हमारे पास सीक्वेंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है, ये सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड चैप्टर है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हमें डेफिनेशन क्लियर करनी होगी किसकी, सीक्वेंस की। फिर पता होना चाहिए सीरीज, फिर पता होना चाहिए प्रोपोगेशन, फिर पता होना चाहिए सीक्वेंसेस कितने टाइप के होते हैं। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है तो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। इन सब के ऊपर हम डिटेल स्टडी करेंगे, एक एक टॉपिक को डीपली स्टडी करेंगे। तो आप पेन कॉपी उठाइए और जुड़ जाइए 30 से 40 मिनट के लिए मेरे साथ। आइए, सीक्वेंस, इट इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट फॉलो अ सर्टेन पैटर्न। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 so on so is the sequence which is an infinite sequence of natural numbers. Series, it is the sum of the elements to which the sequence correspond. For example 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus so on so is the series of natural numbers. Each number in a sequence or a series is called a term. Here 1 is the first term and 2 is the second, 3 is the third term and so on so. Next we have propagation. It is a sequence in which the general term can expressed using a mathematical formula or the sequence which uses a mathematical formula that can be defined as propagation. Next, types of propagation. There are commonly 3 types of propagation: arithmetic progression, geometric progression and harmonic progression. Now, notation in arithmetic progressions. First term is noted by A, common difference is noted by D and n term is noted by An. Sum of first n terms, that is noted by Sn. Now question arises here, what is common difference? Common difference, the constant value added to each term to get the next term is called the common difference. It is noted by D. D is equal to An minus An minus 1, An minus 1 minus An minus 2, so on so. A3 minus A2, A2 minus A1, that's each equal to D. For example, in the sequence we have 1 3 5 7 9 so on so. Here A first term is 1, D 3 minus 1 equal to 5 minus 3, 7 minus 5, 9 minus 7, each equal to 2. That's called D, common difference. Next, arithmetic progression. Arithmetic progression, also known as AP, is a sequence in mathematics where the difference between the two consecutive terms is a constant. The constant is known as the common difference. In other words, each term in the sequence is obtained by adding a fixed number to the preceding term. A list of number following a specific pattern where each term is denoted by adding a constant value called the common difference to the preceding term. Mathematically general form of an arithmetic progression. Mathematically हम arithmetic progression को कैसे लिखते हैं? The sequence of the type A plus D
a plus 2d so on so is called arithmetic progression, where a is called, ये जो a है, a जो होता है वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म, a is equal to first term, a is called first term, and d is called, d equal to common difference, common difference, common difference. Terms of an AP, the number in the sequence are called terms. For example, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और सो इस तरीके से टर्म चलती जा रही है। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से, और सेकंड टर्म को, जो सेकंड टर्म है, जैसे मैंने लिखा फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू a, जो पहले नंबर पे टर्म होगी, a2 सेकंड टर्म, इसको डिनोट करेंगे हम a प्लस d से, थर्ड टर्म को लिखेंगे हम a प्लस 2d, और इसी तरीके से हम आगे टर्म्स को लिखते जाएंगे। मान लीजिए फोर्थ टर्म को क्या लिख देंगे, थर्ड को क्या लिख दिए, a प्लस 2d सो। इसी तरीके से मान लीजिए मुझे 10th टर्म लिखनी है, तो 10th टर्म को क्या लिखेंगे, a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, a प्लस 9d। और अगर मुझे nth टर्म लिखनी है, nth, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो इसमें हमने सीखा क्या, मान लीजिए मैं 20th टर्म लिख रहा हूं, तो मुझे पहले a लिखना है, प्लस 20 माइनस 1, 20 से कम 19d, ये आ गई मेरे पास 20th टर्म। मान लीजिए मेरे को 30th टर्म लिखनी है, दैट्स a30 इक्वल टू a प्लस 29d। सिर्फ आपने d के साथ जो नंबर लिखना है वो n से a कम करके लिखना है, ठीक है। a होगी इसमें फर्स्ट टर्म, d होगा कॉमन डिफरेंस, n होगा नंबर ऑफ टर्म्स, और an जो है वो nth टर्म है, मींस लास्ट टर्म होगी आपके पास। कौन सी टर्म होगी, लास्ट टर्म, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 5.1, अब हम सीधे एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। देखो ये चैप्टर बहुत इजी है, पर आप लोगों ने करना क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है आपने। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो इजी तो कुछ होता नहीं है, पर इसमें प्रैक्टिस करते रहो आप साथ साथ में मेरे, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द फर्स्ट लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हमें बताना है कि ये जो नंबर्स दे रखे हैं, ये स्टेटमेंट दे रखी है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर है ये सिचुएशन अर्थमेटिक की है तो क्यों है, हमें इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लेते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। अब बात क्या हुई है इसमें कि फर्स्ट किलोमीटर जो है उसका फेयर क्या है, किराया कितना है, 15 रुपए। फर्स्ट किलोमीटर का 50 रुपीज जो है वो किराया लग रहा है, और एडिशनल किलोमीटर जितने भी आगे होंगे उसके 8 रुपीज लगेंगे। तो मुझे बताना है ये जो सिचुएशन है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी या नहीं बनेगी। आइए देखते हैं इसको। टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹15, टैक्सी फेयर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर ₹8। तो मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है a1 कितना हो गया, 15, और d क्या आ गया मेरे पास, d आ गया मेरे पास 8, d कितना आ गया 8। टैक्सी फेयर फॉर द सेकंड किलोमीटर कितना हो जाएगा, a2 क्या आ जाएगा, a2 आ जाएगा 15 प्लस 8 दैट्स इक्वल टू 23। a3 कितना बनेगा मेरे पास, 23 में फिर से 8 ऐड कर दो, कितना बन गया, ये बन गया 1 और 3 31, एंड सो सो। अब देखिए हमारे पास सीक्वेंस बनी क्या है, ये देखो। थर्ड किलोमीटर के लिए 31, टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट 4 किलोमीटर 39। यस, दिस वन इज अ एपी बिकॉज वी हैव फर्स्ट टर्म 15 कोमा, नेक्स्ट थी हमारे पास 23, फिर थी हमारे पास 31, फिर थी हमारे पास 39 कोमा सो। यस, दिस वन इज अ एपी बिकॉज 15, 23, 31, 39 so form an AP as each succeeding term is obtained by adding 8 in its preceding term। हम पिछली टर्म में
जो है कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रहे हैं और अगली टर्म बनती जा रही है और उसमें हर एक में से कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। नेक्स्ट देखो, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, क्या बोला? अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, एक सिलेंडर है उसमें हवा भरी हुई है, ठीक है। अब when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time, एक टाइम में जो वैक्यूम पंप है वो 1/4 एयर जो है उसमें रिमूव कर देता है। कितनी एयर रिमूव करता है? 1/4 एयर जो है उसमें रिमूव कर देता है। मान लीजिए कि आपके पास 1 पूरा कंप्लीट है, 1/4 रिमूव हुआ तो 3/4 बचा उसका, फिर 3/4 का फिर 1/4 जो रिमूव होगा, फिर जो बाकी रिजल्टेड में बचेगा उसका फिर 1/4 रिमूव होता जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो वॉल्यूम है वो 1/4 कम होता जा रहा है, टोटल जो रिजल्ट आ रहा है उसका। तो हमें बताना है ये एपी बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है, वैसे तो ये वॉल्यूम कम होता जा रहा है तो ये एपी नहीं बनेगी। आइए हम यहां से प्रोसेस के साथ करके देखते हैं। ठीक है, लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ सिलेंडर इनिशियली, स्टार्टिंग में कितना था? V लीटर। मान लीजिए V फॉर वॉल्यूम, तो V लीटर्स आ गया इसका। वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर सेकेंड टाइम, सेकेंड टाइम में कितना आ जाएगा? हम करेंगे क्या इसमें, सेकेंड टाइम में हमने क्या किया इसमें कि V में से 1/4, V का 1/4 माइनस कर देंगे, V माइनस V अपॉन 4, कम करो 4B माइनस V, 3B अपॉन 4, 3B अपॉन 4th पार्ट ऑफ द ईयर। हमारे पास कितना बचा? 3/4 ऑफ द वॉल्यूम। कितना बचा? 3/4 ऑफ द वॉल्यूम। 3/4 ऑफ द वॉल्यूम हमारे पास बच गया है। कितना बचा है? 3/4। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब ये तो आ गया मेरे पास सेकेंड टाइम। थर्ड टाइम के लिए कितना बचेगा? ये जो 3/4 पार्ट बचा उसका भी 1/4 कम करिए, 3B अपॉन 4 माइनस 1/4 ऑफ 3B अपॉन 4। तो इसका क्या? 4 4 जा 16। आप ऐसा करिए 3B अपॉन 4 बाहर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1/4 आ जाएगा आपके पास। तो 4 माइनस 1 3/2, तो ये आपके पास बना 3 अपॉन 4 होल स्क्वायर इंटू B पार्ट ऑफ द ईयर। नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 4 का क्यूब इंटू B पार्ट ऑफ द ईयर, इस तरीके से। तो आपके पास टोटल कुल मिला के बना क्या वॉल्यूम? फर्स्ट पार्ट में B था, फिर उसका 1/4 कम हुआ तो 3/4 बचा, फिर 9 अपॉन 16 बचा, फिर उसके बाद ये बच गया 3 3 या 9 3 या 27 अपॉन 64th ऑफ द वॉल्यूम, ये बचा सो। अब ये तो मेरे पास एपी नहीं बनी क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा है। हम सेकंड से फर्स्ट को माइनस करें, थर्ड से सेकंड को माइनस करें, फोर्थ से थर्ड को माइनस करें, तो सभी का कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आएगा, इसलिए ये एपी नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, इसलिए ये नहीं होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर every meter of digging when its cost ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। अब इसमें भी कुछ ऐसी सिचुएशन दे रखी है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर every meter of digging when its cost is ₹150 for the first meter and rising ₹50 for each subsequent meter। कह रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर जो होगा उसमें डिगिंग की कॉस्ट जो होगी, खुदाई करने के लिए आपको ₹150 पे करने हैं और उसके बाद हमारे पर किलोमीटर के हिसाब से 50 रुपीज बढ़ जाएंगे। फर्स्ट किलोमीटर के 150 हुए तो सेकंड का जब टाइम आएगा उसमें 50 रुपए ऐड कर दीजिए, 200 रुपीज हो जाएगा, फिर 200 में फिर से 50 ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से हर एक मीटर के बाद आपके 50 रुपए बढ़ते जाएंगे। अब हमें यह बताना है ये सिचुएशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ये सिचुएशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है हमारे पास? 150। कितना? 150। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर ई सब्सिक्वेंट मीटर ₹50। कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर, फर्स्ट का तो 150 हो गया। अब जो फर्स्ट 2 किलोमीटर हुए, सेकंड वाला जो किलोमीटर चला उसमें कितना बनेगा? 150 में 50 रुपए और ऐड कर दो तो 200 रुपए लगेंगे। कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर के लिए 50 रुपए और 250 हुआ। कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर फर्स्ट 4 किलोमीटर 300, सो। अब मेरे पास सीक्वेंस बनी कैसी? यस,
150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, so on. So form an AP with a common difference of 50 between each term. इन सभी टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो 50-50 का आ रहा है। इसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास 150 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो 50 का आ रहा है, तो ये एपी है। नेक्स्ट, the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। अब यहां पर अमाउंट है, तो अमाउंट भी जनरली जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं आएगा ये, क्योंकि कंपाउंडेड लग रहा है इसके ऊपर इंटरेस्ट। कैसा लग रहा है? कंपाउंडेड। अब हमारे पास we know that if P is deposited at R% compound interest per annum for n years, the amount of money will be, initial amount कितना था हमारे पास 10,000, compound interest per annum 8%। अब फॉर्मूला होता क्या है हमारे पास अमाउंट निकालने का? P टाइम 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर n। P टाइम 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर n, वेयर P इनिशियल अमाउंट, R रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कंपाउंडर लग रहा है हमारे पास, और n नंबर ऑफ ईयर्स या मंथ जो भी कहा है, पर एनुम है तो पर ईयर का होगा n, नंबर ऑफ ईयर कितने साल के लिए लगा। ठीक है, तो देखो अभी इसको इसमें डाल करके देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बनता है। ये देखो जरा, देयरफॉर ईच ईयर द अमाउंट ऑफ मनी विल बी, क्या क्या अमाउंट आएंगे हमारे पास? फर्स्ट ईयर का जो एंड होगा तब हमारे पास क्या होगा? स्टार्टिंग में तो हमारे पास 10,000 था, पर आफ्टर ईच ईयर द अमाउंट ऑफ मनी विल बी कितना आ जाएगा? 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 रेज पावर 1, फिर 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 पावर 2, फिर 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 रेज पावर 3, so on so। No, this one is not an AP because we have the common difference is not same, that is different in each situation। देखो हर एक सिचुएशन में अलग अलग आ रहा है ये। आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करो, थर्ड में से सेकंड को माइनस करो, तो वो कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, नेक्स्ट। अब आगे क्या है? आगे क्वेश्चन है सेकंड। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। बोलता है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, हमारे पास ए और डी दे रखा है। हमारे पास एक फर्स्ट टर्म ए दे रखी है एंड कॉमन डिफरेंस कितना है? डी दे रखा है। इसमें हमें बताना है इसकी राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। पहली 4 टर्म्स इसकी बतानी है। कौन सी टर्म्स बतानी है? फर्स्ट 4 टर्म्स। ये मेरे पास फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने इसमें क्या करना है कि फर्स्ट टर्म लिखो। ये देखो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। कॉमन डिफरेंस कितना है? 10। देन A1 ए के बराबर होता, फर्स्ट टर्म ए के बराबर 10 ही आ जाएगा। A2 सेकेंड टर्म को क्या लिखते हैं हम? सेकेंड टर्म को लिखते हैं a प्लस डी, 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। फिर 20 में फिर से 10 ऐड कर दीजिए, तो A3 कितना बन जाएगा आपके पास? 20 प्लस 10 करिए 30। A4 के लिए क्या करेंगे आप? 30 में फिर 10 ऐड कर दीजिए 40। A5 फिफ्थ टर्म के लिए 40 में 10 ऐड करो 50, so on so। Therefore the AP will be 10, 20, 30, 40, 50, so on so, and first 4 terms of this AP will be 10, 20, 30 and 40। तो ये इसकी पहली 4 टर्में आ गई। सेकंड पार्ट देखो, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है आपके पास। देखो ए दे रखा है -2, डी दे रखा है 0। A1 किसके बराबर हुआ? A1 फर्स्ट टर्म के बराबर होता है, वो -2 है। डी कितना है? 0। अब इसमें डी 0 है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रही है, तो हमारे पास A2 कितना बना? A1 प्लस डी मीन्स -2 प्लस 0, -2 ही आया। A3 भी -2 आएगा, A4 भी -2 आएगा, A5 A6 सारे -2 आएंगे। Therefore AP will be -2, -2, -2, so on so, and first 4 terms of this AP will be -2, -2, -2, -2 and -2। ये भी हो गया। नेक्स्ट A दे रखा है आपके पास 4, D दे रखा है -3,
A1 कितना हो गया 4 के बराबर, A2 क्या होता है A1 प्लस डी या A प्लस डी, 4 माइनस 3 कर दीजिए तो 1 आ गया। A3 A2 में डी ऐड कर दीजिए 1 माइनस 3 माइनस 2 आ गया। A4 करना है A3 में डी ऐड करो माइनस के 5 and the AP will be 4 1 minus 2 minus 5 so and so and first 4 terms of the AP will be 4 1 minus 2 and minus 5। ये आ गया। फर्स्ट एक्सरसाइज तो बहुत इजी है, आप खुद भी कर सकते हैं इसको। ये देखिए ये A है मेरे पास, ये D है, A2 ये है मेरे पास, A3 ये निकल गया। अब इसी तरीके से इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स आपको क्लियर करनी है। कौन सी टर्म्स? फर्स्ट 4 टर्म्स। A4 ये देखो ये बन गया 10, द AP विल बी -1 -1/2 0 और 1/2 एंड फर्स्ट 4 टर्म्स विल बी, यही आपके पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन A इक्वल टू -1.25 D इक्वल टू -0.25, A1 इक्वल टू A फर्स्ट टर्म के बराबर होता है तो फर्स्ट टर्म है -1.25, ठीक है। कॉमन डिफरेंस है -0.25, -0.25 उसमें से ऐड करते चलना है। A2 कितना बन जाएगा -1.50, A3 -7.5 -1.75 और A4 कितना बनेगा 2। देयरफॉर द AP विल बी, ये हमारे पास AP आ गई आपके पास। आगे देखो थर्ड, इसमें क्या पूछा है? फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म पहले वाली टर्म को फर्स्ट टर्म कहते हैं, तो A की वैल्यू कितनी है इसमें 3, इसमें कितनी है A 3। अब कॉमन डिफरेंस D कैसे निकालेंगे? अगली वाली टर्म से पिछली माइनस कर दो, 1 - 3 इक्वल टू -2, D कितना आ गया -2। ऐसे इसमें फर्स्ट टर्म ये -1 में से -1 -5 कितना आ गया आपके पास -1 + 5 और ये मेरे पास बन गया 4। तो कॉमन डिफरेंस कितना बन गया इसका 4, ठीक है। और इसी तरीके से इसको भी करना है। ये देखिए ये आ गया। नेक्स्ट ये आया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये थर्ड आ गया, ये इसका फोर्थ क्वेश्चन आ गया। इसमें A की वैल्यू 0.7 है और D निकालना 1.7 में 0.6 माइनस कर दीजिए। A क्या है 0.6 और D क्या आएगा 1.7। सेकंड टर्म में से 0.6 माइनस करो तो D आ जाएगा मेरे पास 1.7 माइनस 0.6 दैट्स इक्वल टू 1.1। अब इसमें देखो which of the following are APs if they form an AP find the common difference D and write 3 more terms। अब ये आ गया मेरे पास सारे के सारे क्वेश्चन। इसमें क्या निकालना क्या है हम लोगों को? इसमें बताना है कि ये AP है या नहीं है। AP पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉमन डिफरेंस सभी टर्म्स का सेम आना चाहिए, 2 4 8 16 सो ऑन सो। अब जब मैं पहला D1 निकालूंगा तो कितना निकलेगा 4 - 2 दैट्स इक्वल टू 2। D2 दूसरा कॉमन डिफरेंस 8 - 4 कितना आ गया मेरे पास 4। D3 कितना आया मेरे पास 16 - 8 दैट्स इक्वल टू 8। अब कॉमन डिफरेंस देखिए, यहां पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस आर डिफरेंट। 2 4 8 16 32 इस तरीके के कॉमन डिफरेंस बनेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? पहले वाली AP नहीं है। उसी तरीके से आगे वाले इन सभी को करना है आपने। देखो इसको, ये आ गया द सीक्वेंस इज नॉट फॉर्मिंग एन AP। क्यों? क्योंकि इससे कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहे हैं। सेकंड में देखो, सेकंड क्या है? ये आ गया मेरे पास सेकंड। इसमें से A2 - A1 करो 1/2, A3 - A2 करो 1/2, A4 - A3 करो 1/2। यहां D सभी में सेम है, देयरफॉर ये AP है। और नेक्स्ट जो 2 टर्म्स या 3 टर्म्स बोली हुई है वो आप निकाल सकते हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, गिवन ये मेरे पास दे रखी है सीक्वेंस, कॉमन डिफरेंस A2 - A1 करो, फिर A3 - A2, A4 - A3, D की वैल्यू -2 आ रही है सभी से।
एंड द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। हेंस नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर A5, A6, A7 निकाल देंगे, ये आ गया आपके पास, फिर ये आ गए और ये आ गया आपके पास, ठीक है। -7.2 में से 2 माइनस करो तो ये आ गया, -9.2 में से फिर 2 कम कर दीजिए, -11.2 में 2 कम करो तो ये आता जाएगा। अगला नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो, गिवन ये दे रखा है, हियर द डिफरेंस आर A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, सभी में कॉमन डिफरेंस 4 के बराबर आ रहा है। यस दिस वन इज अ AP। हेंस नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर A5, A6, A7। A5 आ गया आपके पास 6 के बराबर, A6 कितना हो गया, 6 में 4 ऐड करो 10, A7 10 में फिर 4 ऐड करो 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिफ्थ, गिवन 3 प्लस √2 प्लस 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। अब इसे चेक करना है ये AP है कि नहीं है। कॉमन डिफरेंस A2 - A1 √2, A3 - A2 √2, A4 - A3 √2। तो कॉमन डिफरेंस सभी से कितना आ रहा है, √2 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या होगी, सभी में √2 ऐड करते चलो, A5 में भी √2, A6 के लिए भी, A7 में भी, तो अगली टर्म बनती जाएगी। तो मेरे पास कितनी बनी, फिफ्थ वाली टर्म है 3 + 4 √2, सिक्स्थ है 3 + 5 √2, सेवंथ है 3 + 6 √2। नेक्स्ट 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, so here the common difference are। अब कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं आ रहा, A2 - A1 कुछ और है, A3 - A2 अलग है, A4 - A3 अलग है। तो here कॉमन डिफरेंस, here डिफरेंस इज नॉट सेम एवरी टाइम। यहां कॉमन डिफरेंस क्या नहीं आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, इसलिए ये AP नहीं हुई। तो नेक्स्ट टर्म भी इसकी नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट देखो 0, -4, -8, -12, here the differences are A2 - A1 -4, A3 - A2 करो -4, A4 - A3 करिए -4, therefore D = -4 and the given sequence form an AP। कॉमन डिफरेंस सेम है हर एक स्टेज पे, तो आप कह सकते हैं ये AP है। नेक्स्ट फोर टर्म A5, A6, A7, A5 हो जाएगा -16, A6 हो जाएगा -20, A7 हो जाएगा 24। नेक्स्ट A8 -1/2, -1/2, -1/2, हेयर द कॉमन डिफरेंस आर 0, 0 ही आएगा इसमें से। तो फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट टर्म जो भी बनेगी -1/2 ही आएंगी वो भी, ठीक है। चलें आगे, ये देखो सभी में सेम ही आ रही है। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन 1, 3, 9, 27, हेयर द कॉमन डिफरेंस आर डिफरेंट आ रहे हैं। कॉमन डिफरेंस A2 - A1 2 है, A3 - A2 6 है, A4 - A3 18 है, एंड द गिवन सीक्वेंस इज नॉट फॉर्मिंग एन AP, ठीक है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज डिफरेंट इन ईच स्टेज। 10th को देखो जरा, A, 2A, 3A, 4A, here the common differences are A2 - A1, 2A में से A कम करिए A3 में से A2 कम करो, फिर A4 में A3 कम करो A। कॉमन डिफरेंस D किसके बराबर है, A के बराबर, एंड द गिवन सीक्वेंस इज फॉर्मिंग एन AP। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, सभी में A आ रहा है। A5 5A हो जाएगा, A6 6A हो जाएगा, सेवंथ टर्म A7 हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन A स्क्वायर A3 A4 so here the common differences are डिफरेंट आ रहे हैं। देखो A2 - A1 ये आया, A3 - A2 A स्क्वायर इंटू A -1, फिर A4 - A3 A3 इंटू A -1। कॉमन डिफरेंस डिफरेंट है, इसलिए ये AP नहीं है। नेक्स्ट देखो √2, √8, √18, √32। पहले इसको सॉल्व कर लिया करो। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहला क्या नंबर है √2, फिर √8, फिर √18, फिर √32। हम इसे लिखते हैं √2, √8 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए √8 का मतलब है 2 × 2 × 2। ये पेयर बाहर आ गया तो कितना बना 2√2, कितना बन गया 2√2। √18 की वैल्यू, √8 की वैल्यू, √18 को क्या लिखेंगे 3 × 3 × 2, तो 3 का पेयर बाहर आ गया 3√2। अगला नंबर क्या आ जाएगा 3√2। अगला 32 के लिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने हुए 1 2 3 4 5। ये पेयर बाहर, ये पेयर बाहर, तो कितना बना मेरे पास 2 × 2 और रूट के अंदर फिर 2, 2 2 जब 4 √2 आया।
कितना आया 4√2, तो नेक्स्ट हुआ 4√2। अब ये देखो √2, 2√2, 3√2, 4√2 ये वैल्यूज हैं। अब a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो 2√2 में से एक √2 कम करो, √2 आ जाएगा। फिर 3√2 में से 2√2 कम करो, एक रूट आ जाएगा। 4√2 में 3√2 कम करो, एक रूट आ जाएगा। देखो हर एक में इसमें कॉमन डिफरेंस कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। देयरफॉर ये सीक्वेंस है, एपी है। क्या है ये, एपी। हेंस नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, √2 ऐड करते चलो उसमें, तो √50, फिर √72, √98। इसको देखो √3, √6, √9, √12। हियर द डिफरेंसेस आर, कितने डिफरेंस आ रहे हैं आपके पास, डिफरेंस इसमें डिफरेंट आ रहे हैं। a2 माइनस a1 अलग आ रहा है, a3 माइनस a2 अलग आ रहा है, a4 माइनस a3 अलग आ रहा है। द गिवन सीक्वेंस इज नॉट फॉर्मिंग एन एपी। इसको देखो 14th को 1 का स्क्वायर, 2 का 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मींस और नंबर के स्क्वायर है। 1, 9, 25, 49 सो ऑन सो। हियर द डिफरेंसेस आर, डिफरेंस भी डिफरेंट आ रहा है। a2 माइनस a1 8 है, a3 माइनस a2 16 है, a4 माइनस a3 24 है। द गिवन सीक्वेंस इज नॉट फॉर्मिंग एन एपी, तो ये एपी नहीं बना रही है। नेक्स्ट देखो 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। अब इसमें क्या है, इसमें भी क्या है, डिफरेंस पहले का कितना है, 5 5 जा 25, 25 माइनस 1 करो 24, 7 7 जा 45, 49, 49 में से 25 कम करो 24, 73 में 49 कम करो तो 24। तो आप कह सकते हैं हियर d इक्वल टू 24 एंड द गिवन सीक्वेंस फॉर्म एन एपी। गिवन सीक्वेंस क्या बना रही है, ये गिवन सीक्वेंस एपी बना रही है। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, a5 आ जाएगा 73 में 24 ऐड करो 97, a6 97 में फिर 24 ऐड करो 121, a7 121 में 24 फिर ऐड करो 145। तो ये भी हो गया। 5.2 एक्सरसाइज में क्या है, इस एक्सरसाइज में आपको क्या क्या मेन रहेगा, इसमें एक डी कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। n नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। फर्स्ट टर्म निकालना, इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। फिर उसके बाद nth टर्म को निकालना, इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। लास्ट टर्म निकालना, इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालना, ये सारे 4-5 पार्ट आपके बन सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमें पहले फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं आता तो ये एक्सरसाइज फिर नहीं आएगी। फॉर्मूला क्या है, जल्दी जल्दी से पेन कॉपी ली हुई है, कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दो क्या है। चलो भाई मैं लिख देता हूं, a प्लस डी a प्लस डी कोमा a प्लस 2d कोमा a प्लस 3d कोमा सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आ गया। इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, ये a1, इसको सेकेंड टर्म a2, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और सो ये nth टर्म है आपके पास। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके पास, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके पास। अब देखते चलो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। पहले सबसे पहला क्वेश्चन उठाओ, चेक करो क्या बोला। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि आपने यहां जो ब्लैंक स्पेस है उसको फिल करना है। पहले पार्ट में a की वैल्यू 7 है, d 3 है, n 8 है, an क्वेश्चन मार्क है। an क्या है मेरे पास, क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है मुझे। अब कैसे पता लगेगा, a की वैल्यू लिख दी मैंने 7, a की वैल्यू क्या लिखी 7, d की वैल्यू कितनी है 3, n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 8। अब an क्या है, an इसका मतलब हुआ a8, n की वैल्यू तो 8 है, a8 फाइंड करना मुझे। क्या फाइंड करना है, a8 किसके बराबर होता है, a8 होता है a प्लस a कम करके लिखना है इसको 7d। a8 को क्या लिखते हैं, a प्लस 7d। क्यों, क्योंकि
ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां एन आता है तो एक नंबर डी के साथ कम करके लिखना है आपने, ठीक है। तो यहां पर ए 8 की वैल्यू ए प्लस 7d। अब ए की वैल्यू पुट करो 7, डी की वैल्यू ये 7 इंटू डी कितना है 3, कितना बन गया आपके पास 7 प्लस 21 और ये बन गया 28। अब यहां पर क्या नंबर था 28, क्या नंबर था यहां पर 28। समझ आया या नहीं आया, लग गया पता। उसके बाद नेक्स्ट जैसे ये है, इसमें क्या फाइंड करना है हमने, डी की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डी की। ये देखिए अभी जो किया क्वेश्चन ये आ गया, ए 8 की वैल्यू 7 प्लस 21 ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या था कि हमें इसमें डी की वैल्यू फाइंड करनी थी, किसकी, डी की। अब डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये ए एन का फॉर्मूला है, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। तो ए एन की वैल्यू आ जाएगी 0, क्या आ जाएगी वैल्यू, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए की वैल्यू डाल दो, ए एन की वैल्यू 0 इज इक्वल टू ए की वैल्यू -18 प्लस कितना बोला हुआ है, एन की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 माइनस 1 9 और डी ये आ गया। इसको इस साइड ले जाओ, 18 इज इक्वल टू 9d, 9 1 जा 9, 9 2 जा, d इक्वल टू 2 आया। d की वैल्यू क्या आ गई 2, ये देखो d की वैल्यू 2। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, a की वैल्यू निकालनी है, d की -3 है, n की 18 है, a n -5 है। a n का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। a n की वैल्यू रखो, कितनी है a n की वैल्यू, देखो a n की वैल्यू ये आ गई -5, ये पुट किया -5, a एज इट इज, क्योंकि निकालना है ये n -1, n कितना 18 -1 17 हो जाएगा, d -3 है तो कितना बन जाएगा -5 इक्वल टू a -51, 17 3 जा 51। अब 51 में से इसको 51 को दूसरी साइड ले जाओ तो आपके पास क्या बनेगा, 51 में से 5 चले गए 46, a की वैल्यू 46 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई 46। नेक्स्ट वाला देखिए, a की वैल्यू ये दे रखी है आपके पास, d ये दे रखा है और nth टर्म ये दे रखी है। आपको निकालना क्या है, n निकालना है। इसमें क्या निकालना है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो फॉर्मूला तो पता होगा सभी को, कितना होता है a n इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू रख दीजिए 3.6, a की वैल्यू -18.9 प्लस n माइनस 1 इंटू 2.5। अब -18.9 को दूसरी साइड ले जाओ तो 3.6 में 18.9 माइनस करो 22.5 और क्या बचा n माइनस 1 इंटू 2.5। अब मेरे पास 2.5 को इससे डिवाइड कर दो तो n माइनस 1 इक्वल टू 22.5 अपॉन 2.5। अब ये डिवाइड हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा इसका आपका, तो n माइनस 1 इक्वल टू 225 अपॉन 25, 25 9 जा 225, 25 9 जा 225, n माइनस 1 कितना आ गया 9, तो n की वैल्यू क्या हुई 10। अब उसने यही पूछा था कि n क्या कितनी टर्म्स होंगी, तो ये 10 टर्म्स हैं। नेक्स्ट गिवन a दे रखा है, d दे रखा है, n दे रखा है, an दे रखा है। वी नो दैट an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल टू 3.5 प्लस कितना है n 105 माइनस 1 104 हो जाएगा, ठीक है। अब an की वैल्यू कितनी बनेगी, d की वैल्यू कितनी है, यहां से d की 0 है तो ये तो टर्म पूरी 0 हो गई, तो an भी कितना बना 3.5, हेंस an इक्वल टू 3.5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ द एपी। इस एपी की 30th टर्म आपको फाइंड करनी है। कौन सी टर्म फाइंड करनी है, इस एपी की 30th टर्म फाइंड करनी है आपको। कौन सी 30th। अब 30th टर्म फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, कौन सी टर्म कही 30th टर्म फाइंड करनी है, कौन सी 30th। तो a30 इज इक्वल टू a प्लस 29d, a30th इक्वल टू a प्लस 29d। अब मेरे पास दे क्या क्या रखा है, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म देखिए वो 10 है, प्लस
29 इंटू डी। डी कैसे निकालते हैं? 7 माइनस 10 करिए, तो 7 माइनस 10 करेंगे, माइनस के 3 आएंगे। डी क्या आ गया आपके पास? -3। कितना आ गया? -3। यहां -3 लिख दीजिए। इज इक्वल टू 10 माइनस 9 3 जा 27, 2 3 2 जा 6 प्लस 2 8, और ये आ गया -77। तो इसका आंसर क्या हुआ? -77। कितना आया? -77। अब ये देखो, ये इसका ऑप्शन था, ये इसका ऑप्शन है, -C ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, और ये इसको सॉल्व किया हुआ है, जिसको लिखना है वो यहां से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया मेरे पास सारा A D, फिर उसके बाद nth टर्म निकालने का फॉर्मूला लगाया, और ये करेक्ट ऑप्शन C। अब नेक्स्ट वाला जो था 11 टर्म ऑफ द AP -3 -1/2 2 so on so is, कौन सी टर्म निकालनी है? 11th टर्म को कैसे लिखते हैं? A + 10D। 11th टर्म को क्या लिखते हैं? A + 10D। ये AP लिख दी, A कितना है? -3 है, D क्या आ जाएगा? A2 - A1, तो -1/2 -3 कितना आ जाएगा आपके पास? D -1/2 माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा 3 2 जा 6 6 - 1 5 5/2। D कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5/2। अब nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है क्या? nth टर्म का फॉर्मूला है an = A + n-1 इंटू डी। A + n-1 इंटू डी n टर्म निकालने का फॉर्मूला है। तो मेरे को कौन सी टर्म निकालनी थी? 11th टर्म। कौन सी टर्म निकालनी थी? 11th। A + 10D। A + 10D। A की वैल्यू कितनी है? -3, और प्लस 10D कितना था? 5/2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 2 से 10 कैंसल, 5 आ गया, 5 5 जा 25 -3 22। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। बी इसका करेक्ट आंसर था। अब इसमें देखो, ये बॉक्स फिल करने हैं। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, तो कैसे? अब फर्स्ट क्या है? 2, फिर बॉक्स दे रखा है ब्लैंक, फिर उसके बाद 26। अब बोलता है ये जो ब्लैंक बॉक्स है इसमें मिसिंग टर्म क्या है उसको बताओ, भरो। फर्स्ट टर्म क्या है? A1 = 2। A1 की वैल्यू कितनी है? 2। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड A3 थर्ड टर्म कितनी है? 26 थर्ड टर्म। ये फर्स्ट टर्म है, ये A1, ये वाला A2 और ये वाला A3। A3 कितना है? 26। A3 = 26। A3 को क्या लिखते हैं? A + 2D। A + 2D = 26। A की वैल्यू थी मेरे पास, कितनी है A की वैल्यू? 2। 2 + 2D = 26। 2D = 26 - 2। 2D = 24। 2 1 जा 2, यहां से आ गया 12। तो D की वैल्यू कितनी निकली? 12। D की वैल्यू क्या आ गई? 12। D की वैल्यू आई 12। अब मुझे निकालना क्या था? मुझे निकालना था सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म होती है A + D। तो A की वैल्यू है 2 + 12, कितना बना? 14। इस ब्लैंक बॉक्स में क्या पुट करेंगे? 14। क्या डालेंगे यहां पर? 14। समझ आ गया? उसके बाद यहां पर देखो, फर्स्ट टर्म नहीं दे रखी है, सेकंड दे रखी है, थर्ड नहीं है, फोर्थ दे रखी है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए भी उसी तरीके से ये देख लीजिए फर्स्ट वाला पार्ट, अगर किसी ने नोट नहीं किया है यहां से नोट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखो, कितना था इसमें? 13। बोल दो फॉर द गिवन AP 13?3। सेकंड पार्ट क्या यही था? एक बार देख लेते हैं। ये बॉक्स 13 बॉक्स 3। हाँ, ये आ गया आपके पास। ये अब ये बॉक्स, फिर 13, फिर बॉक्स, फिर 3। फर्स्ट टर्म ये बॉक्स, ये सेकेंड टर्म में आएगा, ये थर्ड में आएगा, ये फोर्थ में आएगा।
क्लियर हो गया। अब सेकेंड टर्म 13 है, सेकेंड टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस डी मेरे पास 13 है। फोर्थ टर्म को लिखते हैं a प्लस 3d इक्वल टू 3 है। अब सॉल्व करेंगे, माइनस 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 ये कैंसिल हुआ, कौन सा मेथड लगा, एलिमिनेशन, जो फोर्थ चैप्टर किया था, सॉरी थर्ड चैप्टर। इसमें से माइनस के 2d कितना बचा, माइनस के 2d इज इक्वल टू 10, 2 से 10 को कैंसिल करो 5, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया, -5। d की वैल्यू क्या आई, -5। d की वैल्यू कितनी, -5। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में किसी एक इक्वेशन में डाल के a की वैल्यू निकाल लेनी है। तो a प्लस डी कितना था, 13। अब d की वैल्यू कितनी है, a इज इक्वल टू 13 माइनस डी, और ये हो गया 13 माइनस डी, तो d तो खुद -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हुआ और ये आया 5, और d की वैल्यू आई मेरे पास 18। d कितना निकला, 18। d की वैल्यू क्या आ गई, 18। अब a की, सॉरी d नहीं, a की वैल्यू कितनी आई, 18। तो पहले बॉक्स में यहां पर क्या आ जाएगा, 18। अब ये कौन सा नंबर है, थर्ड टर्म निकालनी थी। थर्ड को क्या लिखते हैं, a प्लस 2d, थर्ड को क्या लिखते हैं, a प्लस 2d। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 18 प्लस 2d कितना है मेरे पास, -5, d कितना है, -5, और ये कितना बन गया मेरे पास, 18 माइनस 10 दैट्स इक्वल टू 8, और यहां पर क्या आ जाएगा, 8, कितना आ जाएगा, 8। तो मिसिंग टर्म में क्या आएगा, एक में 18 और फिर आएगा नेक्स्ट वन है 8। समझ आ गया। नेक्स्ट ये देखो, मिसिंग टर्म 18 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ठीक इसी तरीके से इसको भी करना है। फॉर द गिवन एपीज 5 क्वेश्चन मार्क, इसमें से कौन सा, फर्स्ट दे रखी है, सेकंड थर्ड नहीं दे रखी है, और फिर फोर्थ दे रखी है। तो फर्स्ट टर्म है 5, a4 है 19/2, और n टर्म निकालने का फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे a फोर्थ निकालना है, a प्लस 3d, a प्लस 3d, a4 की वैल्यू डाल दो 19/2, a की वैल्यू 5 प्लस 3d। अब 19/2 में से 5 कम करो और इक्वल टू 3d के बराबर आ जाएगा, तो इसका एलसीएम ले लो, 19 माइनस 10/2 ये बन जाएगा 19 माइनस 10/2, 9/2, 3d कितना आया, 9/2। अब यहां पर क्या करोगे आप, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, d की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। तो a2 क्या होगा, a प्लस d, a2 क्या होगा, a प्लस d, 5 प्लस 3/2, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13/2। a3 कितना निकलेगा, a प्लस 2d, 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसल, 5 प्लस 3 8। द मिसिंग टर्म्स आर 13/2, 8 रिस्पेक्टिवली। अब इसमें देखो, इसमें कौन कौन सी मिसिंग टर्म है, इसमें फर्स्ट टर्म दे रखी है -4, और सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, फिफ्थ भी नहीं है, सिक्स्थ टर्म है मेरे पास जाकर के 6। तो सिक्स टर्म किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो आपने लिखना क्या है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। तो कितना बन गया मेरे पास, 6 इक्वल टू -4 प्लस 5d, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू -4 है। तो 10 इक्वल टू 5d, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, d की वैल्यू कितनी हुई, 2, d की वैल्यू क्या आ गई, 2, d की वैल्यू आई 2। अब a2 जो मिसिंग टर्म्स है उसको निकालना, a2 क्या होगा, a प्लस डी, तो -4 प्लस 2 -2, a3 a प्लस 2d, -4 प्लस 2 इंटू 2, तो -4 प्लस 4 इक्वल टू 0, a4 a प्लस 3d, -4 प्लस 3 2 जा 6, तो -4 प्लस 6 2, a5 a प्लस 4d, -4 प्लस 8 कितना बन गया, 4। देयरफॉर मिसिंग टर्म्स आर -2 0 2 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट, फॉर द गिवन एपी क्वेश्चन मार्क 38, फिर क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क 22। अब मेरे पास सेकेंड टर्म दे रखी है और एक लास्ट टर्म दे रखी है। सेकेंड टर्म कितनी है मेरे पास, 38, तो आप लिख सकते हैं सेकेंड टर्म a प्लस डी इक्वल टू 38, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सिक्स टर्म दे रखी है मेरे पास 22, तो आप लिख सकते हैं a प्लस 5d माइनस 22। इनको दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो
तो आपके पास क्या निकल जाएगा एलिमिनेशन मेथड से, डी की वैल्यू आ गई कितनी -15, डी की वैल्यू दोनों में किसी एक में पुट कर दो तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, ए की, 1 में पुट कर दो 38 इक्वल टू ए प्लस -15, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 38 प्लस 15 इक्वल टू 53, और a3 कितना बनेगा a प्लस 2d, 53 प्लस 2 इंटू -15 23, a4 a प्लस 3d, 53 प्लस 3 इंटू -15 8, a5 a प्लस 4d इक्वल टू 53 प्लस 4 इंटू -15 इक्वल टू -7। द मिसिंग टर्म्स आर क्या क्या बनी, 53, 23, 8 एंड -7 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट, which term of the AP3, 8, 13, 18 and so on so is 78? इस AP की कौन सी टर्म 78 है, इस AP की कौन सी टर्म 78 है, ये आपको पता करके बताना है। which term of the AP 3, 8, 13, 18 so on so is 78? अब मैं मान लेता हूं इसकी nth टर्म जो है वो 78 है। कौन सी टर्म, nth टर्म। nth टर्म को क्या लिखते हैं हम, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। अब n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 78 माइनस ए। अब हमारे पास दे क्या क्या रखा है, वहां से देखिए, n-1 एज इट इज, डी 8 - 3 करिए 5 इज इक्वल टू 78 माइनस ए फर्स्ट टर्म 3, कितना बन गया 75, n-1 इंटू 5, 5 1 जा 5, 5 1 और ये 5, 15 जा 75, n-1 इक्वल टू 15 और n इक्वल टू कितना हो गया 16, n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 16, कितना आ गया n 16। तो उसने पूछा था इस AP की 78 कौन सी टर्म है, इस AP में 78 जो है 16th नंबर पर आएगा। कब आएगा, 16th नंबर पर आएगा। नेक्स्ट बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP 7, 13, 19 so on so 205। अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n निकालना है, इसमें भी क्या निकालना है n। फिर एक ये आ गया 18, 15 1/2, 13, so on so -47। ठीक है, इसमें क्या करना है आपने, देखिए गिवन 7, 13, 19 so on so 205 इज एन AP, a की वैल्यू 7 है, an 205 है, d निकालेंगे 13 - 7 कर दीजिए, d निकल जाएगा आपके पास। उसके बाद nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब आपके पास 205 किसके बराबर हुआ, 7 प्लस n-1 इंटू 6। अब 7 को दूसरी साइड ले जाओ, 205 में 7 कम करेंगे 198, n-1 इंटू 6। अब 6 से 198 को कैंसिल करो तो कितना बचता है 33। तो n की वैल्यू 1 को साइड ले जाओ, n इक्वल टू 34। तो इस AP की 34th टर्म जो है वो 205 है। नेक्स्ट, गिवन 18, 15 1/2, 13 so on so -47 इज द AP। अब इसमें a की वैल्यू 18, an -47, d की वैल्यू निकालोगे कैसे, a2 -a1, 15 1/2 -18, 15 2 जा 30 प्लस 1, 31 -18 तो कितना बनेगा 31 - 36 अपॉन 2 तो कितना -5/2। अब n टर्म का फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब -47 इक्वल टू 18 प्लस n-1 इंटू डी 5/2 पुट कर दिया। अब 18 को दूसरी साइड ले जाओ, -47 -18 -65, n-1 इंटू -5/2। अब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से इसको काट दीजिए, 5 1 माइनस से माइनस कैंसल, 5 से 13, 5 जा 65 और 2 से उसको कैंसिल किया तो 13 2 जा 26, n-1 26, n equal to 27। given AP has 27 terms। अब नेक्स्ट इसमें देखो चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11852। इसमें चेक करके बताना -150 इस AP की टर्म है कि नहीं है। अगर 150 -150 इस AP की टर्म है तो इसका मतलब ये होगा कि लेट
ए एन जो होगा उसको -150 मान के चलते हैं, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। ये आ गया, a की वैल्यू पुट करो 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 8 माइनस 11 करिए माइनस के 3 इक्वल टू -150। आपके पास n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -150 -11। अब ये कितना आ गया, -161 -3 को इधर ले आओ, n माइनस 1 इक्वल टू -161 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, तो n इज इक्वल टू 161 अपॉन 3 माइनस है तो +1 और n इज इक्वल टू 161 प्लस 3 अपॉन 3, ये कितना आ गया 164 अपॉन 3। अब इसको डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट में आएगी, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n की वैल्यू किस में आनी चाहिए थी आपके पास, नेचुरल नंबर में। किस में आनी चाहिए थी, नेचुरल नंबर में। अब मुझे कैसे पता लग गया, देखिए इसका सम करो, 6 + 4 10 + 1 11। 3 से वही नंबर डिविजिबल है जो 3 के किस में आता है, टेबल में आता है, ठीक है, उसका सम 3 के टेबल में आना चाहिए, तो इससे 11 बन रहा है, इसलिए ये नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो मैं कह सकता हूं -150 इस एपी की टर्म नहीं है, -150 इस एपी की टर्म नहीं है। इसके साथ हम जो है वो आगे वाला जो एक्सरसाइज बची है हमारे पास, आगे का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तब तक आप यहीं तक प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस के साथ साथ में आपने 1 या 2 बार इसको रिवाइज करना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर इसके ऊपर बताना है कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। अगर इसमें कुछ आपको और सजेशन चाहिए तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए, ठीक है। बाकी अपने एग्जाम की तैयारी करिए, हम जितने भी ये आगे के चैप्टर बचे हैं वो जल्दी जल्दी करवाते जाएंगे, पर आपने रोज के रोज जो है वो इन वीडियोस को देखना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पर साथ में क्या काम करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप नेक्स्ट टॉपिक को बेझिझक अपने हिसाब से उसको सॉल्व करते रहेंगे। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।